So in today's class, we'll continue meiosis 1, prophase 1. Last time liptotine, zygotine, and we started discussing packetine. Packetine हम start किए. So packetine means what happens? Packetine stage means nuclear membrane, nucleolus still intact, centrioles still there only, not moving. And the chromosomes are undergoing a very important process during packetine stage. What is that process? Crossing over. During packetine stage, there is a process called crossing over. Crossing over hoga. So first point in packetine stage, crossing over occurs. Tetrad is very clear. Tetrad is very clear. So here there is a confusing question. When tetrad formation occur in zygotine stage, and tetrad is very clear. If there is a question during which stage a tetrad is very clear, tetrad is very clear in packetine stage, because you can see here, you can count in each pair 4 different chromatid you can see. है ना? In each pair you can count 4 chromatids, very distinct. So you may say in bivalent stage, in zygotine stage also we can see 4 chromatids. But question is, tetrad formation occur in zygotine stage. Tetrad is very clear during packetine stage. And third point, it requires recombinase enzyme. Recombinase enzyme लगेगा यहाँ पर. For packetine stage, which enzyme is required? Recombinase. Recombinase बोलेंगे. ठीक है? What is the function of recombinase? It help in breaking and rejoining. Yesterday also I give an example. Suppose these two pens, if I want to change the cap, ये पेन का कैप इसको लगा देंगे, इसका कैप इसको लगा देंगे, that process is crossing over. और वो क्रॉसिंग ओवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग. क्या करना है? ब्रेक करना, रीजॉइन करना, दोनों कराना पड़ेगा. रिकम्बाइनेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड. recombination nodules. Recombination nodules are formed. Recombination nodules are formed. What is recombination nodule? Site of crossing over. जिस प्लेस में क्रॉसिंग ओवर होता है, that place is called recombination nodule. Before crossing over, the site of crossing over is called recombination nodule. The site of crossing over is recombination nodule. Site of crossing over is recombination nodule. Site of crossing over is recombination nodule बोलेंगे. Site of crossing over, recombination nodule. Okay? Any question? Packetine stage means you should remember crossing over occur, tetrad is very clear, recombinase enzyme is required. Recombinase is helping for breaking and resealing. And the site of crossing over is recombination nodule. Site of crossing over is
recombination nodule. So ये था अभी पैकेटिन स्टेज के बारे में. Now after पैकेटिन, what is the next stage? Diplotin stage. Diplotin stage. So I will not change the diagram, same diagram. ज्यादा कुछ हो रहा नहीं यहां पर. डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन स्टेज में हम क्या लिखेंगे? द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट between non-sister chromatid, between non-sister chromatids after crossing over. Yes, after crossing over is called chiasmata. Is called chiasmata. So here you may get confused recombination nodule versus chiasmata. So what is recombination nodule? Site of crossing over. जिस प्लेस में क्रॉसिंग ओवर होगा, दैट इज recombination nodule. And the point of contact after crossing over is chiasmata. After crossing over, chiasmata. Before crossing over, recombination nodule you can call. And what is happening here? The chiasmata looks like X स्ट्रक्चर है ना, ऐसे दिख रहा है, X स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है. chiasmata X के जैसा दिख रहा है ना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे डिप्लोटीन स्टेज में. डिप्लोटीन स्टेज में और एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा. So when synaptonemal complex was formed, synaptonemal complex was formed in zygote stage. synaptonemal complex क्या कर रहे थे? क्रोमोसोम को पेर पेर बना रहे थे, जोड़ी जोड़ी बना रहे थे. Pairing occur during zygote stage, and pairing process is also called synapsis. Pairing is called synapsis. And डिप्लोटीन में क्या हो रहा है? ब्रेकिंग ऑफ द पेयर. सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा है. ठीक है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व. ठीक है, बट क्रोमोसोम्स आर नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड. पूरा सेपरेट नहीं हुए हैं. स्टिल देयर आर सम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बट क्रोमोसोम्स आर सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर कनेक्टेड एट सम पॉइंट्स. राइट, दैट इज कॉल्ड डिप्लोटीन स्टेज. chiasmata बोलेंगे इसको. What is the next stage after diplotin? What is the next stage? Diakinesis बोलेंगे. What is mean by diakinesis? Diakinesis का मतलब क्या है? देखिए, diakinesis means nuclear membrane disappearing. Number one, nuclear membrane disappearing. Nucleolus disappearing. न्यूक्लियोलस डिसअपियरिंग. अब तक सब ठीक चल रहा था. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एवरीथिंग वाज इंटैक्ट. अभी डिसअपियर हो रहा है. नाउ द क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे हैं. क्रोमोसोम आफ्टर क्रॉसिंग ओवर सेपरेशन चल रहा है. एंड सेंट्रियोल मूविंग टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. स्पिंडल फाइबर भी शुरू हो गए डेवलप होना. स्पिंडल फाइबर डेवलप होना शुरू हो गए. सो डायकाइनेसिस में क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
nuclear membrane, nucleolus disappearing, nuclear membrane, nucleolus disappearing, chromosomes undergo terminalization, टर्मिनलाइजेशन बोलेंगे प्रोसेस को. व्हाट इज टर्मिनलाइजेशन? अनजिपिंग. अनजिपिंग मतलब क्रोमोसोम कंप्लीटली सेपरेट हो रहे हैं. डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब हुआ? डिप्लोटीन स्टेज में. डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हुआ. डायकाइनेसिस में क्रोमोसोम कंप्लीटली सेपरेट हो रहे हैं और ऐसे अनजिपिंग हो रहे हैं. सेपरेट होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अनजिपिंग. पेयरिंग को बोलेंगे जिपिंग. अब सेपरेट हो रहे हैं, अनजिपिंग. क्रोमोसोम अंडरगो टर्मिनलाइजेशन. और क्या है देखिए, स्पिंडल फाइबर्स. स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट अपीयरिंग. दैट मीन्स नॉट फुल्ली फॉर्म्ड. फुल तो नहीं बने लेकिन बनना शुरू हो गए हैं. स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपीयरिंग. एंड दिस diakinesis is transition. Diakinesis is transition to metaphase 1. मेटाफेज 1 के लिए ट्रांजिशन है ये. ट्रांजिशन मतलब जंप है. डायकाइनेसिस जंप्स, सीधा जंप करके कौन से स्टेज में चले जाएंगे? मेटाफेज 1 में चले जाएंगे. ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1. क्लियर? व्हाट आर द पॉइंट्स? डायकाइनेसिस के सारे क्लियर हो गए. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस डिसअपियरिंग, टर्मिनलाइजेशन हो गया, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपियरिंग, और डायकाइनेसिस इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, जंप्स टू मेटाफेज 1. क्लियर है? अब हम सीधा डायकाइनेसिस 1 से अब सीधा कहां जाना चाहिए? मेटाफेज. एंड रिमेंबर, प्रोफेज 1 से मैं यस्टरडे आल्सो एक्सप्लेन्ड, प्रोफेज 1 से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं. मैक्सिमम चांसेस आर देयर फ्रॉम प्रोफेज 1. सो प्रोफेज 1 के इवेंट्स को अगर मैं समराइज करूं, सिनेप्सिस या पेयरिंग कब हुआ था? स्टेज का नाम बोलना है आपको. स्टेज नेम यू हैव टू टेल. क्रॉसिंग ओवर कब हुआ था? क्रॉसिंग ओवर. रिकम्बाइनेज एक्टिव. एक्टिव कब हुआ? लॉन्ग ड्यूरेशन किसका है? लॉन्ग ड्यूरेशन मंथ्स टू ईयर्स, या मंथ हो सकते हैं या ईयर्स में भी हो जाता है. ये बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन है. सिनेप्सिस कब हुआ था? जाइगोटिन में हुआ था. क्रॉसिंग ओवर कब हुआ? पैकिटिन. रिकम्बाइनेज एक्टिव, पैकिटिन. and long duration, several months to several years, this is diplotin. In human reproduction chapter also we have seen oogenesis. In oogenesis अगर हम पढ़ के देखेंगे और एक बार बुक, prophase 1, primary oocyte get arrested in prophase 1. prophase 1 diplotin stage and get restarted after the puberty. मतलब 12-13 ईयर तक पूरा डिप्लोटिन स्टेज में चलता हो, प्राइमरी oocyte. करेक्ट? सो दैट मीन्स इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. लॉन्ग ड्यूरेशन में काउंट करते हैं डिप्लोटिन को. सेवरल मंथ्स क्यों बोला मैं? डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिजम्स. ह्यूमन में ईयर्स में चले गया है. बर्थ एंड प्यूबर्टी ऑफ फीमेल, बर्थ ऑफ फीमेल एंड प्यूबर्टी ऑफ फीमेल 12-13 ईयर्स का गैप है. इट इज ईयर्स. लेकिन दूसरे एनिमल्स में मंथ्स में भी हो सकता है डिप्लोटिन स्टेज. सेवरल मंथ्स टू सेवरल ईयर्स बोलना है. तो ये थे सारे प्रोफेज 1 के पॉइंट्स.
Now after prophase 1 we can go to metaphase 1, anaphase 1, telophase 1, cytokinesis. Meiosis 2 तो पढ़ने की जरूरत नहीं है बोला मैं. Meiosis 2 is exactly like माइटोसिस. फिर भी हम बुक खोल के देखेंगे वो. चले मेटाफेज 1 बताइए. मेटाफेज 1 इज डिफरेंट फ्रॉम जस्ट मेटाफेज. याद रखना मेटाफेज तो हम पढ़ चुके हैं. अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मेटाफेज 1 पढ़ा रहा हूं. इट्स ए मियोसिस फेज. मेटाफेज 1. ड्यूरिंग मेटाफेज 1 you can see centrioles are just opposite poles of the cell. Asters अभी भी दिख रहे हैं. asters हैं ये. Radiating microtubules are called asters. And the chromosomes are arranged in pairs. Homologous pairs of chromosomes are arranged in equatorial plate of the cell. Homologous pairs of chromosomes. Bivalents. Where bivalents are arranged? Bivalents are arranged in equatorial plate of the cell. इक्विटोरियल प्लेट में अरेंज हैं बाइवेलेंट्स. ये स्पिंडल फाइबर हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफेज एंड मेटाफेज 1? मेटाफेज एंड मेटाफेज 1 में डिफरेंस बताइए. मेटाफेज में कैसे ड्रॉ किया था जरा चेक कर लेना आप. सिंगल क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ द सेल. बट यहां पे पेयर में दिख रहे हैं क्रोमोसोम. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इन मेटाफेज 1? बाइवेलेंट्स और homologous pairs. Homologous pairs are arranged in equatorial plate of the cell. Equatorial plate of the cell. यही इवेंट है बस मेटाफेज 1. ठीक है. क्लियर है. और एक हम बात याद रख के चलेंगे. 10 बाइवेलेंट्स इज इक्वल टू 20 क्रोमोसोम है ना. चुप याद रखना है. क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगा. क्वेश्चन पढ़ते वक्त हम केयरफुली नहीं पढ़ते. सपोज मेटाफेज 1 ऑफ द सेल इज हैविंग 10 bivalents or 20 bivalents. After meiosis they have how many chromosome? 20 bivalent. 20 bivalent मतलब 40 क्रोमोसोम. और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ. 20 हो जाएगा. 20 बाइवेलेंट से 20 क्रोमोसोम होंगे. आया समझने? केयरफुली. 10 बाइवेलेंट इज इक्वल टू 20 क्रोमोसोम. एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम. अभी मैं जो क्वेश्चन बताया चलिए वो लिख के भी करेंगे. ठीक है. इफ ए सेल is having 20 bivalent, undergoes meiosis. After meiosis, what will be the chromosome number? What will be the number of chromosome in daughter cells? Yes, बताइए. So we all know that meiosis means it is a reductional division, right? Meiosis is what type of division? Reductional division है. If cell is having 20 bivalent is equal to how many chromosome? 40 क्रोमोसोम बोलेंगे.
20 बाइवेलेंट इज इक्वल टू 40 क्रोमोसोम। वही तो बता रहा था मैं, एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम, 10 बाइवेलेंट्स में 20 क्रोमोसोम, 20 बाइवेलेंट्स में 40 क्रोमोसोम। आफ्टर meiosis what happens? Chromosome number reduces to half. Chromosome number reduces to half. You know meiosis, reductional division. क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, पहले से मालूम है। 20 बाइवेलेंट्स मतलब ये हाफ हो जाएंगे 10 बाइवेलेंट, या 40 क्रोमोसोम बन जाएंगे 20 क्रोमोसोम, या 10 बाइवेलेंट इज इक्वल टू 20 क्रोमोसोम। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो भी देखेंगे। इफ दे आर आस्किंग बाइवेलेंट वी विल आंसर 10 बाइवेलेंट, इफ दे आर आस्किंग क्रोमोसोम 20 क्रोमोसोम। तो यहां पे आंसर है 20 क्रोमोसोम। नहीं, बाइवेलेंट सेपरेट हो जाएगा एनाफेज में। हाँ, बाइवेलेंट तो नहीं रहेगा, लेकिन बाइवेलेंट तो नहीं रहेगा, एनाफेज 1 के बाद सेपरेट हो जाएंगे बाइवेलेंट्स, लेकिन 20 क्रोमोसोम बोलना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। नाउ एनाफेज 1, मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज 1। Now compare the diagram. Just now we have taken metaphase 1. So see the diagram of metaphase 1. Compare. In anaphase 1, also centriole you can see at opposite poles of the cell. Esters भी दिख रहे हैं ये. And chromosome, whole chromosome is moving. Whole chromosome is moving to opposite poles of the cell. Why I am saying whole chromosome? होल क्रोमोसोम इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मेटाफेज 1 वाज हैविंग 4 क्रोमोसोम्स। मेटाफेज 1 में कितने क्रोमोसोम थे? 4 क्रोमोसोम है। नाउ एट ईच पोल हाउ मेनी क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम ईच। whole chromosomes are moving. That means 2 chromosomes are moving upper side and 2 chromosome moving lower side. Spindle fiber is still there. What is happening in anaphase 1? Whole homologous chromosomes, whole homologous chromosomes are separating. Whole homologous chromosomes are separating. Sister chromatids are still attached to same centromere. Whole homologous chromosomes are separating. पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है. Sister chromatid are still attached to same centromere. So what is meant by this? These are the two sister chromatid, right? Attached to same centromere. Sister है ना, ये sister chromatids हैं. Whether sister chromatids separated in anaphase 1? No. So why we are focusing on this? Sister chromatids are still attached to same centromere, because this is the main difference between mitosis anaphase and meiosis anaphase 1. Main difference between mitosis and meiosis is in mitosis anaphase, अगर आप निकाल के पढ़ेंगे नोट्स, सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमैटिड सेपरेट बोल के था. सेंट्रोमियर स्प्लिट, chromatid separate, but in anaphase 1 whole chromosomes are moving.
centromere is not splitting. Centromere is not splitting. So if centromere is not splitting, sister chromatid are still attached to the same centromere. ये है एनाफेज 1. कुछ पूछना है? क्लियर है? चलो अभी हम जो है नेक्स्ट फेज की तरफ जाएंगे. टीलोफेज 1. टीलोफेज 1 टीलोफेज 1 में हम क्या याद रखेंगे? देखिए, इन टीलोफेज 1 देयर आर 2 सेल्स, अपर साइड न्यूक्लियस, लोअर साइड न्यूक्लियस. अपर साइड न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम ड्रॉ करूं मैं? 2 क्रोमोसोम ड्रॉ करेंगे. और लोअर साइड न्यूक्लियस में भी 2 क्रोमोसोम ड्रॉ करेंगे. स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो गए. स्पिंडल फाइबर डिसअपियर्ड. एंड सेंट्रियोल है, इधर एक सेंट्रियोल है, इधर एक सेंट्रियोल है. हो गया ना रिडक्शन? मेटाफेज 1 में कितने क्रोमोसोम ड्रॉ किया था मैं? 4 क्रोमोसोम ड्रॉ किया था. नाउ इन ईच न्यूक्लियस हाउ मेनी क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम है, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए. अब ये फ्यूचर में ये साइटोकाइनेसिस होगा एंड इट विल डिवाइड एंड बिकम 2 सेल्स. 2 सेल बन जाएंगे. तो ईच सेल इज हैविंग 2 क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम नंबर. इन टीलोफेज 1 रिडक्शनल डिवीजन हो चुका है. एनाफेज 1 में क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ. तो यहां पे लिखे ईच न्यूक्लियस ऑफ द फ्यूचर डॉटर सेल रिसीव half number of chromosomes. Each nucleus of the future daughter cell receive half number of chromosome. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर, the chromosomes do not undergo fully extended dispersion or decondensation. Do not undergo fully extended dispersion or decondensation because journey is not completed. अगर आप टीलोफेज के साथ कंपेयर करो, आप जो स्टूडेंट कंपेयर कर रहे हैं उनके क्वेश्चन भी बनाने में आसानी होगी. वो दे कैन डू क्वेश्चंस सेल साइकिल से. इफ यू स्टडी जस्ट टीलोफेज, नॉट टीलोफेज 1, टीलोफेज, माइटोसिस का टीलोफेज क्या लिखे थे हम? जरा पढ़ो, निकालो. टीलोफेज में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी और अंडरलाइन भी करना अभी पढ़ के. क्रोमोसोम लूजेस देयर आइडेंटिटी, क्रोमोसोम बिकम डिस्क्रीट, लूज क्रोमोसोमल मटेरियल, डीकंडेंसेशन हो रहा था वहां पर टीलोफेज में. और डायग्राम भी देखो जरा, लूज नेटवर्क ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा है, क्रोमैटिन दिख रहा है वो. नाउ कम टू टीलोफेज 1. और टीलोफेज 1 के पॉइंट्स पढ़ो. यहां पे मैं बोल रहा हूं क्रोमोसोम डू नॉट अंडरगो फुल्ली एक्सटेंडेड डिस्पर्शन और डीकंडेंसेशन. पूरा का पूरा क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन नहीं होगा बिकॉज जर्नी इज नॉट कंप्लीटेड. स्टिल जर्नी इज देयर, है ना. एक स्टेशन आ गया है, एक इंटरवल होगा, फिर उसके बाद मियासिस 2 स्टार्ट हो जाएगा.
आपका जो है डेस्टिनेशन 2 स्टेशंस के बाद है, तो पहले स्टेशन पे निकल के पूरा लगेज ओपन कर देते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि जर्नी अभी कंटिन्यू है। तो क्रोमोसोम को लूज नहीं बनाना है आपको, क्रोमोसोम रिमेन कंडेंस्ड, दे डू नॉट अंडरगो फुल्ली एक्सटेंडेड डीकंडेंसेशन तो नहीं हो रहा। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है क्रोमोसोम, इट कैन अंडरगो लिटिल डिस्पर्शन, it will undergo little decondensation, but fully not fully extended decondensation तो नहीं हो सकता। ठीक है, फुल्ली एक्सटेंडेड डीकंडेंसेशन तो नहीं होगा। क्रोमोसोम कैन अंडरगो लिटिल डिस्पर्शन बोल सकते हैं, कैन अंडरगो लिटिल डिस्पर्शन, लिटिल डिस्पर्शन हो सकता है बट नॉट फुल्ली। हो गया, ये टीलोफेज 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद होगा इंटरकाइनासिस। इंटरकाइनासिस होगा। व्हाट इज इंटरकाइनासिस? गैप बिटवीन meiosis 1 and meiosis 2. What happens in interkinasis? Nothing happens. No DNA replication, no interphase. मैं ऑलरेडी कल ही लिखाया हूं, in meiosis only one round of interphase occur, only one round of DNA replication occur, that too before meiosis 1. meiosis 1 शुरू होने से पहले ही हो गया था डीएनए रेप्लिकेशन। इंटरकाइनासिस में एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दे सकता है, इंटरकाइनासिस इज द टाइम गैप बिटवीन meiosis 1 and meiosis 2 during which chromosomal material डबल या न्यूक्लियर मटेरियल डबल। रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इंटरकाइनासिस में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं है, इंटरकाइनासिस में कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं है। जो क्रोमोसोम है इसी से काम चलाना, इसी से काम चलाना। समझ में आ गई बात? ये टीलोफेज 1 हो गया है। आफ्टर टीलोफेज 1 साइटोकाइनेसिस ऑकर, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अभी हम जो है बुक से पढ़ेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, कुछ तो नया मिला के देखेंगे। माइटोसिस के वैसे ही होता है 100%, फिर भी आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक बार बुक जरूर देखेंगे। बुक दीजिए। क्रोम देखिए, मियोसिस, meiosis 2 आ जाइए। meiosis 2, so I said meiosis 2 is like mitosis। जो माइटोसिस के पॉइंट होंगे वो meiosis 2 के भी पॉइंट्स होंगे, नो डिफरेंस। देखेंगे पढ़ के। प्रोफेज 2, meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated. In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resemble a normal mitosis। आ गई देखो लाइन, नॉर्मल माइटोसिस। वो ज्यादा कुछ लिखना नहीं चाह रहा, डायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि नॉर्मल माइटोसिस की तरह ही होगा ये। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2, द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। वही डीकंडेंसेशन से कंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो गया। फिर मेटाफेज 2, at this stage chromosome align at the equator and the microtubule from opposite poles of the spindle get attached to kinetochores of sister chromatids। मतलब ये था हमारे पास टीलोफेज 1 में, टीलोफेज 1 में एक सेल में कितने क्रोमोसोम थे? 2 क्रोमोसोम थे ना हमारे पास। ये 2 क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, और ये न्यूक्लियोलस डिसअपियरिंग,
सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स में रेडी हैं। ओके, ये प्रोफेज 2। मेटाफेज 2, कंप्लीटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्ड and the chromosome aligned at the equator of this cell. ठीक है, like this. मेटाफेज 1 हो गया। एनाफेज 2, it begin with simultaneous splitting of the centromere. ये भी बहुत भारी क्वेश्चन है। In meiosis, during which stage centromere splits? In meiosis, during which stage centromere split? Option 1 anaphase 1, option 2 anaphase 2। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट होने वाला है, ये नोट करना है पॉइंट। इन मियोसिस एनाफेज 2 सेंट्रोमियर स्प्लिट्स सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया है। इन मियोसिस एनाफेज 1 सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, सॉरी, इन मियोसिस एनाफेज 2 सेंट्रोमियर स्प्लिट्स। कुछ भी नया नहीं है, देख लेना आप। अब टीलोफेज 2 में आ जाइए डायरेक्टली, नेक्स्ट पेज पे। मियोसिस एंड्स विथ टीलोफेज 2, in which two groups of chromosome once again get enclosed by a nuclear envelope. Cytokinesis follows, resulting in the formation of tetrad of cell, 4 haploid daughter cell. यहां पर मैं आपको एक वर्ड देना चाह रहा हूं। मियोसिस शुरू हुआ, मियोसिस शुरू होने के बाद यहां पर 2 सेल बने आफ्टर M1, मियोसिस 1, एंड दीज आर कॉल्ड डायड ऑफ सेल। क्या बोले? डायड। 2 सेल बने तो डायड ऑफ सेल। और उसके बाद मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस 2 में क्या हुआ बोलो? 4 cells are formed and these cells are called tetrad of cells. मियोसिस 1 के बाद क्या बने? डायड ऑफ सेल्स। मियोसिस 2 के बाद टेट्राड ऑफ सेल्स आर फॉर्म, 4 सेल्स आर फॉर्म। माइक्रोस्पोर टेट्राड भी यहीं से आया था वर्ड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। जरा डायग्राम भी देख लेंगे। पेज नंबर 169 डायग्राम्स, पेज नंबर 169 डायग्राम्स। First diagram is like this. ये डायग्राम है, आपको लेबलिंग करना है। सपोज लेबलिंग नहीं आया एग्जाम में, दीज आर ABCD, लेबलिंग करना है, करो लेबलिंग करो। क्या बोलेंगे भाई? फर्स्ट डायग्राम में क्रॉसिंग ओवर तो चल रहा है, क्रॉसिंग ओवर चल रहा है, क्रोमोसोम्स आर एक्सचेंजिंग देयर मटेरियल, तो डेफिनेटली ये होगा प्रोफेज 1। यहां पे पेयर्स में क्रोमोसोम इक्विटोरियल प्लेट में दिख रहे हैं, दैट इज वाई मेटाफेज 1, मेटा 1। और यहां पे अपोजिट पोल्स में दिख रहे हैं होल क्रोमोसोम, एनाफेज 1। and at the end 2 cells are formed in meiosis 1 and 2 cells are formed, telophase 1 complete हो चुका है।
राइट। अब ये दो सेल का कंटिन्यूएशन, इसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट पेज पे दिया है। जाइए नेक्स्ट पेज पे। करेक्ट है, कंटिन्यूएशन है। देखिए 2 क्रोमोसोम है, उसके बाद सिंगल क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट में दिख रहे हैं, सिंगल सिंगल, पेयर्स में नहीं है। मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 में कितने सेल बने लास्ट में? 4 सेल्स आर फॉर्म्ड। अंडरस्टूड। पूरा मियासिस का डायग्राम बनाया, देखिए कैसा बनाया। आया समझने? क्या बनाएंगे डायग्राम? इसी को कंटिन्यू करो आप। टीलोफेज 2, इसको अगर मैं कंटिन्यू करा तो क्या बना? ये 1 सेल, 2 क्रोमोसोम है, ये प्रोफेज 2 है। फिर मेटाफेज 2 में सिंगल सिंगल क्रोमोसोम, एनाफेज 2 में क्रोमैटिड सेपरेट, क्रोमैटिड सेपरेट। ठीक है, क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। और फाइनली यहां पर 2 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड। ये एक सेल का कंटिन्यू करा मैं। अनदर सेल का भी अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यू विल गेट अगेन 2 मोर सेल्स। सो दैट मीन्स फाइनली हाउ मेनी सेल्स यू विल गेट? 4 cells you will get finally. Anybody doubt you can ask. डायग्राम में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो जल्दी से। सेंट्रियोल नहीं दिया तो भी समझना कि है, समझ लेना, बस कुछ भी नहीं है, सेंट्रियोल है, समझ लेना। नहीं, मियोसिस 1 में फर्स्ट स्टेज में डबल हो जाता, जो भी होना है। बिफोर मियोसिस 1 एवरीथिंग डबल, वट एवर रिक्वायर्ड प्रिपरेशंस, all the preparations are made before meiosis 1 only. प्रिपरेशन जितना भी था मियोसिस 1 से पहले ही होगा। सेंट्रियोल भी जितने चाहिए थे सब वहां पर ही बन गए हैं। क्लियर है? इवेंट याद रहना, बस आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, नेम द स्टेज ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग विच whole chromosomes are separated to opposite poles of the cell, sister chromatid are still attached to their same centromere। बोल तो बोलने आना, it's anaphase 1, it's anaphase 1। Now coming to significance of meiosis, significance of meiosis। फर्स्ट पॉइंट बताया है, meiosis help in maintaining constant number generation after generation। Our parents having 46 chromosome, grandparents have 46 chromosome, grandparents के parents 46 chromosome। How this constancy is maintained? Neither increasing nor decreasing. It is because of meiosis. Constant chromosome number, constant chromosome number, generation after generation, generation after generation, constant chromosome number, पर से पैराडॉक्सिकली, पर से पैराडॉक्सिकली एनसीईआरटी के वर्ड है। व्हाट इज मीन बाय पर से पैराडॉक्सिकली? कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पर से पैराडॉक्सिकली। पर से पैराडॉक्सिकली मीन्स डिफिकल्ट टू बिलीव,
डिफिकल्ट टू बिलीव, आसान बात तो नहीं है ये। कितने जनरेशन हो गए होंगे अब तक ह्यूमन के, कितने जनरेशन हो गए होंगे? वी नो ओनली 1 or 2 generations, प्रीवियस जनरेशंस, 3 जनरेशन, इतना ही जान सकते हैं, उससे क्या ज्यादा जानेंगे आप? हाउ मेनी generations are completed and how the chromosome number is maintained constantly, every time, constantly, in all generation, this is because of meiosis only. अब जैसे कि एक मेल है, एक फीमेल है, इसके 46 क्रोमोसोम, इसके 46 क्रोमोसोम, लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम में इसका गैमेट में 23 क्रोमोसोम, इसके गैमेट में 23 क्रोमोसोम, दोनों फ्यूज हो गए 46। फिर ये पर्सन ग्रो हुआ 46 वाला, फिर और एक 46 से मैरी करा, फिर दोनों के 23 बाहर आए, फिर फ्यूज होके 46 हुआ, फिर ये ग्रो हुआ, फिर एक और एक 46 से मैरी करा। कहीं पे भी इंक्रीज नहीं हो रहा क्रोमोसोम नंबर, 23 से 24 भी नहीं हो रहा गैमेट में, राइट? दिस कॉन्स्टेंसी इन क्रोमोसोम नंबर इज बिकॉज ऑफ मियोसिस। हाँ, अब इतने ज्यादा मियोसिस हो रहा है, डेफिनेटली देयर आर सम चांसेस ऑफ एरर्स। एरर्स के चांसेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि जीरो एरर्स बोल रहे हैं मियोसिस में, ऐसा तो नहीं है। देयर आर सम चांसेस ऑफ एरर्स, 1 in 1 lakh, 1 in 1 lakh पर्सन्स एरर हो सकता है, मियोसिस में गड़बड़ हो सकती है। 1 in 1 lakh बेबीज, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ऐसे बेबीज भी बर्थ होते हैं, क्रोमोसोमल एरर होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है, रेयर केस है, 1 in 1 lakh। एंड वन मोर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, सुनो क्या है? इट ब्रिंग जेनेटिक वेरिएशंस। मियोसिस ब्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशंस ला रहा है मियोसिस, जेनेटिक वेरिएशंस, ओके, जेनेटिक वेरिएशंस आ रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन। याद रखो, क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, कौन सा तो कौन सा एक इवेंट, डीएनए पॉलीमरेज कब सिंथेसाइज हुआ? G1 फेस। डीएनए पॉलीमरेज फंक्शनल? यस फेस। सेंट्रियोल डबल? यस फेस। हिस्टोन सिंथेसिस? यस फेस। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन? यस फेस। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए? यस फेस। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस? G2 फेस। क्रोमोसोम इन इक्वेटर? मेटाफेस। क्रोमोसोमल पेयर्स at equator? Metaphase 1. Centromere does not split, whole chromosome move to opposite poles, एनाफेज 1। ऐसा इवेंट पूछने वाला है वो। अब वो इवेंट में क्या पूछेगा, कौन सा स्टेज पूछेगा, वी डोंट नो दैट। रेडी रहिए आप, पूरे इवेंट्स याद रहना चाहिए सेल साइकिल में। और कंफ्यूजिंग अगर क्वेश्चन बात करूं मैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन प्रोफेज 1 से आ सकते हैं। अब उसको भी सॉल्व करना है तो प्रोफेज 1 का पूरा पूरा पेज पढ़ लेंगे। प्रोफेज 1, लेट्स रीड प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 पेज नंबर 168 पे है, देखिए प्रोफेज 1, और पूरा मार्जिन बनना चाहिए वहां पर। क्या है, आई एम explaining you how to read this page, not only this page, how to read book, एनसीईआरटी बुक हम कैसा पढ़ेंगे और अपना टाइम कैसा सेव करेंगे। मैं एक एग्जांपल भी बता रहा हूं, ये दिस इज एग्जांपल आल्सो। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ गिवन, प्रोफेज 1। Prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis.
It is further divided into following 5 phases based on chromosomal behavior. यहां पे ये पैराग्राफ में बस एक ही वर्ड काम का है, क्रोमोसोमल बिहेवियर. डोंट रीड दिस पैराग्राफ अगेन, नेवर, कभी भी नहीं पढ़ना ये पैराग्राफ. और एक बार पढ़ेंगे तो टाइम खराब. एक ही वर्ड पढ़ना फर्स्ट पैराग्राफ में, क्रोमोसोमल बिहेवियर. इसको बोलते हैं टाइम सेविंग. मार्क कर लिए हाइलाइटर पेन से. कभी भी आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करें प्रोफेस 1 बोल तो क्रोमोसोमल बिहेवियर पढ़ लेना, आगे बढ़ जाना. अब आ गए लिप्टोटीन में सेकंड पैराग्राफ. बहुत लॉन्ग है सेकंड पैराग्राफ. ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. द कंपैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट लिप्टोटीन. दिस इज फॉलोड बाय सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेस 1 कॉल्ड जाइगोटीन. मतलब मुझे याद रखना है, लिप्टोटीन का याद रखना है. आई वांट टू रिमेंबर लिप्टोटीन. ग्रेजुअली अपीयरिंग, chromosomes are gradually appearing. Over, touch highlight, gradually appearing. कितना टाइम बचेगा देखो आप. मार्च अप्रैल में अगर आप सिर्फ ये काम के कीवर्ड्स अंडरलाइन करके रखेंगे, सो यू आर सेविंग लॉट्स ऑफ टाइम फॉर योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. अगर सही पढ़े बायो तो बहुत सारा टाइम मिलने वाला है आपको. डोंट डू मिस्टेक. अब जाइगोटीन का है. ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर and this process of association is called synapsis. Such pair are called homologous chromosomes. Electron micrograph of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex. देर जल्दी नहीं करना, हाईलाइट करने की, पढ़ना पहले. The complex formed by a pair of synapse homologous chromosomes is called a bivalent or a tetrad. देखो देखो, जाइगोटीन में वर्ड यूज किया है टेट्राड. जाइगोटीन में यूज किया है टेट्राड. क्या पैकेटिन में यूज करेंगे वर्ड टेट्राड? जाइगोटीन में. मतलब मुझे याद रखना है यहां पे सिनेप्सिस. जाइगोटीन पूरा खत्म होने आ रहा है, तो पहला वर्ड मैं अंडरलाइन करूंगा सिनेप्सिस. दूसरा वर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. तीसरा वर्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. और नेक्स्ट वर्ड है बाइवेलेंट और टेट्राड. इतना रहना. However, these are more clearly visible at the next stage. मतलब टेट्राड का फॉर्मेशन कब हुआ, ये है खतरनाक लाइन. However, these are more clearly visible at next stage. मतलब पैकेटिन में क्लियरली विजिबल होंगे. When bivalent is very clearly visible, पैकेटिन स्टेज. When tetrad is very clear, पैकेटिन. मतलब ये लाइन पूरी अंडरलाइन करना. However, these structures are very clear at next stage. ये पूरा पूरा अंडरलाइन करना. और नेक्स्ट के नेक्स्ट बोल तो क्या, वो भी याद रखना. पैकेटिन. First two stages of Prophase 1 are relatively short-lived compared to the next stage, that is Packetin. Okay, Packetin is longer, not longest. अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर Packetin long है ना. Packetin long है compared to first two stages of meiosis Prophase 1. During this stage, 4 chromatid of each bivalent chromosome become distinct and clear. Tetrad. This stage is characterized by the appearance of recombination nodule. Pehla underline, recombination nodule. The sites at which crossing over occurs, या occurred. The site at which crossing over occurs. The site at which crossing over occurred, chiasmata. chiasmata मतलब जहां पे क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया, जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा, that is recombination nodule. Crossing over is the exchange of genetic material between two homologous chromosomes. It is enzyme mediated process. Recombinase. मतलब पैकेटिन के बारे में बहुत कुछ पॉइंट दिया है इधर.
पैकेटीन के बारे में कुछ लिखना है तो मार्जिन में लिख लेना, बहुत ज्यादा दिया उन्हें। पैकेटीन वेरी क्लियर टेट्राड, रिकम्बाइनेज एंजाइम, homologous chromosome participate in crossing over, recombination nodules appear, crossing over completed in packetine stage, crossing over completed in packetine. The next stage is start diplotin. The beginning of the diplotin is recognized by the dissolution of synaptonymal complex and tendency of the recombined chromosome of bivalent to separate from each other. Chromosome are separating, tendency to separate or separated, tendency to separate, not separated. समझो, मतलब क्रोमोसोम सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुए हैं. Still chromosome are attached at the site of crossover. These X-shaped structures are called chiasmata. और यहां पर एक लाइन अंडरलाइन करना, इन oocytes of some vertebrate diplotin can last for months or years. Diplotin is very very long duration. oogenesis of human का एग्जांपल दिया मैं आपको. oogenesis in human female get arrested in prophase 1 stage, diplotin stage till puberty, puberty तक पूरा. मतलब ऐसे अंडरलाइन करके कुछ मार्जिन पॉइंट्स, कुछ अंडरलाइनिंग करके अपना टाइम बचाना. नेक्स्ट टाइम जब भी पेज पढ़ेंगे यू हैव टू रीड दिस, राइट. सब लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना. अगर हर टाइम अगर मैं एनसीईआरटी ही पढ़ूंगा और इफ आई डोंट अंडरलाइन एनीथिंग, इफ आई डोंट मेक एनी मार्जिन नोट्स, कैन आई रिवाइज फॉर 10 टाइम्स? नहीं कर सकता रिवीजन 10 टाइम्स. रिवीजन क्या होते हैं? काम के चीजें होते हैं. ईच एंड एवरी लाइन इज नॉट टू बी रिवाइज्ड. वैसा करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन भी नहीं बनेगा. वी आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टाइम आल्सो. ठीक है. सो अभी हम जो है सेल साइकिल पे अभी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. टुमारो विल सी क्वेश्चंस ऑन सेल साइकिल टुमारो. थैंक यू.